Assalamu alaikum guys. We'll wait for a few more minutes so that the attendees may join. Thank you for your patience. Stay connected. Starting with the name of Allah. Bismillah Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum and hello everyone. I hope you all are doing well. I, Iman Arshad, the member of IEEE Student Branch UAD Texila and Society of Innovative Electric Professional,
welcome you all in this amazing webinar. This series of webinars is presented to you guys so that the undergraduate students could find a better platform in the future where they could carry their studies in the countries they prefer. As St. Augustine said, and I quote, the world is a book, and those who do not travel read only one page. For further details, I would like to call IEEE Chairperson Mr. Azim Ahmed to brief us about the main aim of starting these webinar series. Hope I'm audible. Assalamu alaikum. Hope all of you are in perfect health. Thank you, Iman, for introducing me. Guys, the basic aim of starting this webinar series is to help, especially our batchmates from 19th session, as well as juniors to guide them better for master opportunity from abroad. The series will be comprised of different episodes covering one country at a time. This series is actually only possible with the collaboration and help from our sister society, SAIP, who helped us to take this initiative. I'm very thankful to SAIP, current cabinet, for standing by our side. I would request Ms. Narmeen Zia to share a few words with us on starting of this series. She is actually Vice President of SAIP and one of the co-organizers of this webinar. Over to you, Ms. Narmeen. Assalamu alaikum everyone. Myself Narmeen Zia, Vice President Female of SAIP. First of all, I would like to thank the whole team of IEEE for collaborating with us in this webinar series. And as Azim has already said, that through the platform of IEEE and SAIP, we have especially arranged this webinar series for our batchmates and juniors from 2021 session, so that we all can get the opportunity of foreign scholarship on time. So I believe and I hope that this first episode of webinar series and all the upcoming episodes will be very, very helpful for all of us. And inshallah, we will avail this opportunity in a better way. So that's all from my side. Thank you so much. Over to you, Iman. Thank you, Mr. Azim and Ms. Narmeen Zia, for arranging such enlightening sessions. To give a brief overview on the topic, we have Mr. Talal Farooq, who is one of the alumni of UT Texila and was a part of IEEE family during his university life, and currently studying in Germany. He has also published a research paper with a machine learning inspired efficient audio drone detection using acoustic features title. He was also awarded with the NIGRI FYP funding. Just a little housekeeping before starting the main event. It will be a 50-minute session and the last 10 minutes are reserved for your queries. You can either type them in the chat box or raise your hands. We will unmute your mic and you can directly talk to your speaker. Without any further ado, I would hand over the mic to a respected guest, Sir Talal Farooq. Over to you, sir. Assalamu alaikum, everyone. Thank you so much for introducing me and for this opportunity. Am I audible to all of you? Can someone tell me? Yes, you're perfectly audible. Yes, sir, you are audible. Oh, okay. Thank you so much. So basically the purpose of this seminar is to guide you about the roadmap to Germany. Basically, मैं सबसे पहले तो इसमें आप सबको ना ये स्टार्टिंग में क्लियर कर दूं कि मैं जनरल सा आइडिया दूंगा, उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम जो होगा ना वो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, ताकि आपकी जितने भी क्वेरीज हैं वो मैं उसको साथ साथ क्वेश्चंस के आंसर्स करता जाऊंगा, साथ साथ नहीं, एंड पे सबके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो हम स्टार्ट करते हैं रोड मैप टू जर्मनी। बेसिकली इसमें हमने पॉइंट्स कौन कौन से डिस्कस करने हैं वो मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। उसमें है कोर्स सिलेक्शन एंड रिक्वायरमेंट्स। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी कहीं पे भी एडमिशन लेने के लिए, वो कोर्स सिलेक्शन होती है और रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब जर्मनी में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो एक सबको ये बात पता होगी कि जर्मनी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि वो आपकी एजुकेशन भी जो है वो मोस्टली फ्री है। जो मेन एक्सपेंसेस आते हैं वो आपके फाइनेंसेस या ब्लॉक अमाउंट के आते हैं, और वो भी आपने वन टाइम जोड़ने होते हैं या वन टाइम उनको बैंक अकाउंट में फ्रीज करवाना होता है, उसके बाद वो भी यूज़ कर सकते हो। सेकंड, हम फाइनेंसेस को डिस्कस करेंगे। थर्ड, हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स को, कि जर्मन में कोर्सेज हैं या इंग्लिश में कोर्सेज हैं, इनको डिस्कस कर लेंगे। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है एम्बेसी प्रोसीजर जो है ना इस्लामाबाद एम्बेसी का, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन वो हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं होता। और जिनका कराची का डोमिसाइल है, ये कराची का है, उनके लिए उससे भी आसान हो जाती है। और पार्ट टाइम जॉब्स जो हैं जर्मनी में कौन कौन सी हैं, हम इसको ये 5-6 पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर किसी और के क्वेश्चन कोई होंगे तो उनको ऐड ऑन कर लेंगे।
उसके बाद सबसे पहले हम आ जाते हैं कि कोर्स सिलेक्शन और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैसे हमने पूरी करनी है, कोर्स सिलेक्शन होती कैसे है। इसके लिए मैं सबसे पहले इसकी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे, डार्ट की वेबसाइट पे चले जाते हैं। उधर से ही मैं आपको ऑन हैंड एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि कैसे आपने सेलेक्ट करना होगा। इस पे हम आ जाते हैं, डार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए। ये सारे के सारे लिंक मैंने प्रेजेंटेशन के अंदर अटैच किए हुए हैं। जब भी आपको प्रेजेंटेशन मैंने शेयर कर दिया अजीम के साथ, वो आपके साथ भी शेयर कर देगा, तो वो आप कोई भी जो लिंक है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में आप अजीम से ले सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे आ जाते हैं हम। अभी कोई भी फिल्टर मैं नहीं यूज़ करता। सबसे पहले यहाँ पे आ गया हमारे पास ये डार्ट की वेबसाइट आ गई, इंटरनेशनल प्रोग्राम 2023 का। इसके अंदर हमने सबसे पहले मास्टर्स ही मोस्टली सबने करना है, मास्टर डिग्री में सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिल्टरिंग प्रोसेस में हम मोस्टली इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग का सिलेक्ट कर लिया। और थर्ड में हमने सेलेक्ट कर लिया जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ मुझे लगता है इलेक्ट्रिकल के मोस्टली स्टूडेंट्स होंगे, तो इलेक्ट्रिकल को ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने सेलेक्ट करने के बाद हमने फुल टाइम फुली ऑन साइट वाला कोर्सेज सेलेक्ट कर लिए हम जो से करने हैं। सिटी को अगर प्रायोरिटाइज करना है तो कर सकते हैं, अगर नहीं प्रायोरिटाइज करना है तो उसमें भी कोई इतना इशू नहीं है। और दूसरा एक हमने यहाँ पे इंग्लिश की ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, लैंग्वेज कोर्स इंग्लिश और जर्मन की। अभी क्योंकि जो ऑफिशियल रिक्वायरमेंट होती है वो B1 या B2 मिनिमम रिक्वायर्ड होता है अगर जर्मन में कोर्सेज करने हैं, लेकिन वो फिर इतना आसान नहीं होता हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए जिनकी हमने पूरा का पूरा ही अभी तक कोर्स करिकुलम हमारा इंग्लिश में था, तो इस वजह से इंग्लिश हमारे लिए बेनिफिशियल होती है और आसान भी रहती है। अब इसमें दो तरीके होते हैं। एक तो आपका होता है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाके आपने अप्लाई करना होता है, और दूसरा आपने अप्लाई करना होता है यूनी असिस्ट की वेबसाइट के ऊपर। अब इसमें जो दोनों प्रोसीजर हैं उनको हम देख लेते हैं एक दफ़ा। पहले ये मैं FAU एर्लांगन में ही हूँ, लेकिन मेरा कोर्स ये नहीं है बेसिकली। हम इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं फर्स्ट वाले को। अब एडवांस सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशंस इन इंजीनियरिंग MSc है। अब इसमें हमारे पास सारा कुछ लिखा आ रहा है। डिग्री MSc हो गई, कोर्स इंग्लिश में है, 4 सेमेस्टर इसकी ड्यूरेशन पीरियड है। अब 4 सेमेस्टर ड्यूरेशन पीरियड का मतलब है कि आपके पास मिनिमम 4 सेमेस्टर्स में आपका मिनिमम नहीं, आप 4 सेमेस्टर में प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हो, और इससे एक्स्ट्रा अगर लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो, क्योंकि इधर जो आपने पार्ट टाइम जॉब्स भी करनी होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि अगर फैमिली इतनी सपोर्टिव नहीं है तो फिर आपने पार्ट टाइम जॉब करनी होती है। तो उसके लिए आप 3 इयर्स में भी, मतलब 6 सेमेस्टर्स में भी कर सकते हो, और 8 में भी मोस्टली मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं यहाँ पे 8 में भी करते हैं। तो इतना इसमें कोई वो नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपने 4 सेमेस्टर में ही कंप्लीट करना है। और दूसरा हमारे पास आ जाता है जी, एप्लीकेशन डेडलाइन इन्होंने लिखी हुई है 15 मार्च होती है, तो इससे पहले पहले आपने अप्लाई कर देना है। अब एप्लीकेशन कहाँ किस पोर्टल के ऊपर अप्लाई करनी है और कैसे अप्लाई करनी है। दूसरा आपने कोर्स डिटेल्स थोड़ी सी पढ़ लेनी है। कोर्स डिटेल्स आपने इसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, और बाकी चीज़ें देख लेनी है। कॉस्ट एंड फंडिंग चेक कर लेनी है कि हमारे पास इसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग तो इन्होंने बता दी है। फंडिंग अपॉर्चुनिटी विद इन द यूनिवर्सिटी इसमें अवेलेबल है। अगर आप 2 से लेस पे GPA पे जाते हैं, और GPA का क्राइटेरिया मैं एक दफ़ा दोबारा डिफाइन कर देता हूँ। GPA का क्राइटेरिया इधर होता है कि आपका उल्टा चलता होता है। जिस तरह आपका 4 उधर हाईएस्ट होता है, इधर 1 हाईएस्ट होता है। तो इसी तरह 1.3 सेकंड हाईएस्ट, 1.7 फिर 1.9 2.3 इस तरह चल रहा होता है। जितना उसके हिसाब से बिल्कुल ऑपोजिट होता है जो पाकिस्तान में क्राइटेरिया। तो इसमें आपका 2 से अगर लेस हो ना GPA, तो आपको 300 या 200 यूरोस पर मंथ आपको गवर्नमेंट की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलते हैं। अगर आपका ये कंटिन्यू करो कि 2 से लेस GPA पे आप चल रहे हो, मतलब 1 की लाइन में हो, 3 जिस तरह पाकिस्तान में होता है शायद 3.3 से अबव हो, तो तब आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आपको यूनिवर्सिटी पे करती है 300 यूरोस। इसमें दूसरा आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। मोस्ट ऑफ बिल्स वगैरह आपके 325 टू ये हो जाते हैं, इंक्लूडिंग रेंट वगैरह। क्योंकि मैं लांगन का आपको ज़्यादातर बता सकता हूँ क्योंकि मैं यहीं पे रहता हूँ। तो एवरेज जो रूम कॉस्ट होती है वो तकरीबन 300 टू 400 यूरोस होती है। फूड कॉस्ट आप 100 यूरोस मैक्सिमम लगा तो 150 यूरोस लगा लो। क्लोथिंग वगैरह इन्होंने एक्स्ट्रा लगाई हुई है। ट्रांसपोर्ट आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से, अगर यूनिवर्सिटी के पास हॉस्टल है तो फिर रिक्वायर्ड नहीं होती, अगर दूर है तो फिर रिक्वायर्ड होती है। और ये टेलीकम्युनिकेशन, ये थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस भी इसमें लगाए हुए हैं। तो आप मिनिमम जो होता है 500 टू 600
यूरोस का जो है ना एवरेज लग जाता है। इसको हम एक्सपेंसेस को और थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं। मेन अभी रिक्वायरमेंट्स पे आ जाते हैं। प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं यूनिवर्सिटी के। अब जो भी कोर्स आपने इधर से सिलेक्ट कर लिया था ना डार्ट की वेबसाइट से, इसके ऊपर आप आओगे तो यहाँ पे आपको बैचलर्स बता दिया जाएगा कि प्री रिक्विजिट्स कौन कौन से हैं। कुछ रिक्वायर्ड होती हैं यूनिवर्सिटीज़ के कि आपने सब्जेक्ट्स भी उसमें किए होने चाहिए। कुछ होते हैं कि आपने ECTS कंप्लीट किए होने चाहिए, जैसे हमारे होते हैं कि हमने क्रेडिट आवर्स शायद पूरे करने होते हैं कुछ, और यहाँ पे ECTS का सीन चल रहा होता है। और थर्ड लैंग्वेज रिक्वायरमेंट का भी बताया होता है कि अगर इंग्लिश में कोर्सेज हैं तो उसमें आपने IELTS करना है या टॉफल्स करना है, या आपका जो वो होता है कोर्स करिकुलम है वो इंग्लिश में होना चाहिए। उसका कोई लेटर कुछ यूनिवर्सिटीज में चल जाता है, और ये इसकी डेडलाइन भी लिखी हुई है, और सबमिशन एप्लीकेशन उन्होंने बता दिया कि यहाँ पे आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ठीक हो गया। अब इसके बाद अबाउट द यूनिवर्सिटी और कॉस्ट ऑफ फंडिंग हमने देखी है। इसके और सेकंड जो ये तो हमने देख लिया कि एक मेथड है कि जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से हमने अप्लाई करना है वो हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट होती है। जिस तरह ईमेल लिखी हुई है या यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उसके ऊपर जाके आपने अकाउंट बनाना होता है, और उनको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपने सबमिट करवाने होते हैं। और दूसरा प्रोसेस होता है यूनी असिस्ट का। यूनी असिस्ट का प्रोसेस जो होता है ना, उसके अंदर आपके पास हो जाता है कि आपके पास में यूनी असिस्ट का जो अकाउंट होता है आप उसको ओपन करते हो, और उसके ऊपर थोड़ी सी यूनी असिस्ट की अपनी फीस होती है। वो आपकी होती है फर्स्ट टाइम फीस होती है 75 यूरोस, जो यूनी असिस्ट जो है ना एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए यूज़ करता है। और आपने और सेकंड विद इंक्रीज इन एप्लीकेशन आप इंक्रीज कर सकते हो, मतलब 75 फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए, फिर उसके बाद 30 यूरोस विद एडिशन इन ईच कोर्सेज। मतलब 75 आपने फर्स्ट के लिए पे कर दिया, फिर 30 ऐड कर लें सेकंड के लिए, फिर 30 नेक्स्ट के लिए। इस तरह आपने आगे के लिए एप्लीकेशन। और एक जो मेरा मशवरा होगा सबको कि आपने ना जब भी जर्मनी में अप्लाई करना है ना, तो किसी भी एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना। मतलब कि आपने एक तो देख ली ना कि अब 2 या 3 आपने टारगेटेड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी, जैसे हो गई म्यूनिख की कोई यूनिवर्सिटी हो गई, या लांगन वाली यूनिवर्सिटी है, आखन की यूनिवर्सिटी है, जो टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी है जिनको आप जिसमें जाना चाहते हो, उनको तो टारगेट आपने कर लिया कि इसमें मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन एज अ बैक एंड या उसके लिए ना आपने कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करना है जिसमें जाने का दिल नहीं है, लेकिन एडमिशन आराम से हो जाता है। एडमिशन आराम से होने का ये आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगी कि आप जब वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे होंगे ना, तो आपको जर्मनी आने का वो मिल जाएगा, प्रॉपर वे मिल जाएगा कि आपके पास यूनिवर्सिटी और उस यूनिवर्सिटी का एडमिशन तो होगा कम से कम, कि इसके थ्रू आप जर्मनी में एंटर हो सकोगे। तो लाजमी नहीं है कि आपको हर यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर आएगा या आपकी इनरोलमेंट होगी। तो उसके लिए पहले से ही सोच लो कि 8 to 9 यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई करना है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू अप्लाई करना है, कुछ आपने यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है, ताकि आपका कहीं पे एप्लीकेशन थोड़ी सी कम अच्छी थी तो दूसरे जो है वो उसको बैलेंस आउट कर दे कि आपका वहाँ पे एडमिशन हो जाए आराम से। और जब एडमिशन हो जाता है तो बंदा एक सेमेस्टर यहाँ पे गुजारने के बाद शिफ्ट आउट कर सकता है। इतना मसला नहीं होता कि एक से डी रजिस्टर करता है और दूसरे में रजिस्टर कर लेता है। अगर क्योंकि आप एक दफ़ा यहाँ पहुँच जाते हैं तो उसके बाद आपको ज़्यादा माइंड क्लियर हो जाता है कि मैं इस सिटी में कैसा एडजस्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, दोस्त बन गए हैं कि नहीं बने, या यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा है, यूनिवर्सिटी के पास जॉब अपॉर्चुनिटी कैसी हैं। तो उसके हिसाब से बंदा डिसाइड करता है। बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन पहले भी आप ये काम कर सकते हैं। और यूनी असिस्ट के थ्रू आपने यूनी असिस्ट का भी इसमें मैंने लिंक ऐड कर दिया यूनी असिस्ट का। आप यहाँ पे जाके अपना रजिस्टर करेंगे अकाउंट, एप्लीकेशन डिटेल्स देंगे, यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे, डिज़ायर्ड कोर्स सेलेक्ट करेंगे। कोर्सेज आपने सारे के सारे डार्ट की वेबसाइट से देखने हैं, और उसके ऊपर मेंशन होता है प्रॉपर्ली कि यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई करना है आपने। मैं एक आपको एप्लीकेशन कोई ना कोई दिखा देता हूँ जिसमें यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई करने वाला लिखा हो प्रोसीजर। ये भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अप्लाई करना है। नेक्स्ट कोई फॉर्म की जरूरत लेते हैं। ये भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अप्लाई करना है।
ये भी उन्होंने स्पेसिफिक ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है। इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन ये लिखी हुई है और यूनिवर्सिटी की ये आपकी वेबसाइट आ जाती है जिसके ऊपर आपने जाके अकाउंट बना के और यहाँ पे अपने सारे के सारे अप्लाई कर देना है आराम से। ये आपने प्रोसेस देख लेना है। पहले के यूनिवर्सिटी आपने डार्ट की वेबसाइट से देखनी है, उसके बाद जहाँ पे यूनिवर्सिटी का लिखा होगा वहाँ पे यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करना है और जहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के थ्रू लिखा होगा वहाँ पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर देना है। सो ये हो गया हमारे यूनिवर्सिटी का भी काम और डार्ट का भी काम। अब हमने कुछ यूनिवर्सिटीज़ कैसे देखनी है कि यूनिवर्सिटीज़ का आजकल का क्राइटेरिया कैसे है कि किस किस जीपीए के ऊपर एडमिशन करती हैं, किस क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और कौन कौन से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो आपका ये फेसबुक पे एक ग्रुप है पाकिस्तान स्टडी एंड लाइफ इन जर्मनी फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। ये इसमें ना काफ़ी जो 200 के तकरीबन एप्लीकेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं, कुछ अप्लाई कर रहे हैं और जो मोस्टली जर्मनी में आने के रिलेटेड होता है ना, मोस्टली यहाँ पे क्वेरीज आ जाती हैं। तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा, जैसे यहाँ पे इस स्टूडेंट ने लिखा हुआ है कि बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा रिसीव्ड, कराची कॉन्सुलेट से उसने अप्लाई किया था, अपॉइंटमेंट अप्लाइड इस डेट को की थी, इंटरव्यू डेट ये थी, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट, सीजीपीए उसका था 2.6 और आइल्स उसका 6 था और ब्लॉक अमाउंट उसने फेंटेबा में अप्लाई फेंटेबा के थ्रू था। कोर्स जो था उसका ये था बैचलर्स पब्लिक यूनी और यूनिवर्सिटी का भी उसने बता दिया। तो इसमें इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि यूनिवर्सिटीज़ का आजकल का क्राइटेरिया क्या है, यूनिवर्सिटीज़ जो है लेटेस्ट किस क्राइटेरिया को फॉलो कर रही हैं। और दूसरा जो इस ग्रुप से आपको सबसे अच्छा फ़ायदा हो जाएगा ना, वो ये होगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटी ये आ जाएगी कि क्वेश्चन आंसर्स कहीं पे भी कोई भी मसला होता है आप इस ग्रुप में फ़ौरन पूछ सकते हैं और थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो आपको रिप्लाई भी कर देते हैं। और दूसरा आपको तीसरी आपको ये अपॉर्चुनिटी आसानी पता लग जाती है कि आपके पास जो एम्बेसी का प्रोसीजर है ना, वो आजकल किस क्राइटेरिया पे फॉलो कर रहा है। मतलब एम्बेसी यहाँ पे ना, एम्बेसी का थोड़ा सा वो डिस्कस करते हैं आगे कि एम्बेसी कैसे वर्क करती है और इसका इशू कहाँ पे आ रहा है। तो वो आपने अभी देख लेना है आगे। फेसबुक ग्रुप का भी लिंक मैंने इसके अंदर ये ऐड कर दिया है, तो इतना इशू नहीं है, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया। अब फाइनेंसेस और ब्लॉक अमाउंट को डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली। अब फाइनेंसेस और ब्लॉक अमाउंट में इसमें हमारे पास जो मेन इशू आता है ना, वो ये आता है कि ब्लॉक अमाउंट कैसे करनी है और इसको हम कैसे रिटर्न कैसे करेंगे और हमारी अमाउंट ब्लॉक हो जाएगी, ये क्या होगा, इसके क्वेश्चन होते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स के। तो इसमें जो हमारे पास एक तो ये चीज़ है कि 1 जनवरी 2023 से लेके ये इंक्रीज़ हो जाएगी अमाउंट, तकरीबन है 11,200 यूरोज़ आपने ब्लॉक करवाने होते हैं फिनटेबा में या कोरैकल में। इन दोनों में से आप जो कोई भी चूज़ करना चाहें चूज़ कर सकते हैं। इसका बेसिक जो वो होता है उसमें 4 यूरोज़ आपके कटते हैं और आपने जब भी करवाना है वो करवा सकते हैं। इसमें आपके पास ये होता है कि आपने ना 11,200 यूरोज़ ब्लॉक करवाने होते हैं, क्योंकि जर्मनी में अब आपको ये पता है कि एजुकेशन फ्री है। तो इनको कोई ना कोई, जर्मनी की गवर्नमेंट को कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है कि आपको ये कंफर्म हो उनको कि आप यहाँ आके स्लिप नहीं होगे। आपके पास अपनी स्टडीज़ के लिए प्रॉपर एक्सपेंसेस होंगे कि आप स्टडीज़ को कंटिन्यू करोगे। ये तो नहीं होगा कि आप यहाँ पे फ्री में आओ और फ्री में आकर जॉब स्टार्ट कर दो या स्लिप हो जाओ किसी और कंट्री में। तो ये तो उन्होंने अपने इकोनॉमी के ऊपर बर्डन तो नहीं करना। उन्होंने सीधी सी बात है कि आपका जो कोई ना कोई उन्होंने प्रूफ रखना होता है कि आप यहाँ पे आके स्टडीज़ को कंटिन्यू करोगे। तो स्टडी कंटिन्यू करने के लिए वो फंटीबा के इतनी अमाउंट रखते हैं अपने पास फॉर द फर्स्ट ईयर में वो आपका ये करते हैं कि 11,200 आपके अपने पास रख लिया अपने अकाउंट में। और जब आप यहाँ पे आते हो आप इसको अनब्लॉक करवा लेते हो। मतलब आप यहाँ पे आके जर्मनी का अकाउंट खोला आपने किसी भी बैंक का, आप उसका फिनटेबा के साथ कनेक्ट कर देते हो और फिनटेबा जो है या कोरैकल जो है वो आपको मंथली आपको 900 या 950 यूरोज़ पे करता है आपके उस अकाउंट में। तो आपके स्टार्टिंग के जो आते साथ ही किसी की पार्ट टाइम जॉब तो नहीं लग जाती ना, तो उसके लिए 3 to 4 मंथ्स तो आपको लाज़मी सी बात है कि जो फिनटेबा के पैसे होते हैं जो आपने जमा करवाए होते हैं वो आप यूज़ करते हो ताकि आप अपना जो एक्सपेंसेस हैं वो बेयर कर सको। तो 3 और 4 मंथ्स के बाद आपका क्या होता है कि आपके फिनटेबा के भी पैसे आ रहे होते हैं और आपकी अगर और जॉब लग जाती है तो और जॉब भी आपको मिल जाती है तो उसके भी पैसे आ रहे होते हैं, या अगर टेक्निकल जॉब मिल गई है तो टेक्निकल जॉब के पैसे आ जाते हैं। और आपको अलाउड होता है कि 20 आवर्स आप जॉब कर सकते हो, 20 आवर्स पर वीक। तो ये होता है 80 आवर्स पर मंथ हो जाता है और 12 यूरो जो है वो मिनिमम वेज रेट है।
तो आप इसको एक्सपेंसेस कर सकते हो कि 800 to 900 यूरो आपका मंथली अगर जॉब कर रहे हो तो तब भी आपके पास आ रहा है, और 900 आपका फिनटीबा वाला भी आ रहा होता है। तो आप ये फिनटीबा वाले अगर आपने किसी से लेके आए थे, मामू चाचू जिससे भी लेके आए थे, तो आप उसको भी वापस कर सकते हो। और दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपके अपने थे तो आप अपने सेव करते रहते हो, और आपके पास ब्लॉक अमाउंट जो है वो सेव होती रहती है, और आप अपना यूज़ जो है वो अपना वो उससे कर रहे होते हो जो आप जॉब कर रहे होते हो। तो इतना इसमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये वाला मैनेज नहीं होता, मैनेज आराम से हो जाता है। जितने स्टूडेंट्स आते हैं, मैंने जितने भी देखे हैं, और मैं भी अपना भी बताता हूँ कि मैंने खुद भी अपना मतलब 100% मेरे नहीं थे, मैं भी किसी से लेके आया था, मैंने आके फर्स्ट ईयर के अंदर अंदर वापस रिटर्न नहीं कर दिए। इसी तरह सब मोस्टली स्टूडेंट यही करते हैं। तो ये फिनटीबा ब्लॉक अमाउंट का इतना इशू नहीं होता। तो जर्मनी की ये एक है कि आपको जॉब और जॉब्स तो बहुत आराम से मिल जाती हैं, मतलब 3 to 4 मंथ्स आपको डॉक्यूमेंट क्लियरेंस में चाहिए होते हैं कि आपने आके अपना वीज़ा एक्सटेंशन करवानी होती है, सिटी रजिस्ट्रेशंस करवानी होती हैं, यूनिवर्सिटी की इनरोलमेंट्स करवानी होती हैं, उसके अलावा सिम वगैरह का, बैंक अकाउंट का, ये 5-6 काम जो होते हैं वो मेन आप करते हो। तो 1 से 2 महीने तो वैसे ही लग जाते हैं, और जब वीज़ा एक्सटेंशन का आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं तो आप उसके बाद आप आराम से जाके किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। टेक्निकल तो आप करते रहते हो अप्लाई, जिस टाइम आपको शिफ्ट करने का मौका मिलता है फर्स्ट प्रेफरेंस यही होती है कि बंदा टेक्निकल में जाए ताकि आपका कोई एक्सपीरियंस काउंट हो। और जो और जॉब्स होती हैं वो भी इतनी वो नहीं होती, उसमें भी ये होती है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, फ्लिंक में काम करना है, या राइडर की जॉब हो जाती है, या हो जाती है अमेज़न में जॉब हो जाती है। इस तरह की जितनी भी जॉब्स हैं वो भी वेल पेड जॉब्स होती हैं। टेक्निकल और उसका पे का डिफरेंस नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे आता है कि आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं हो रहा था नॉन टेक्निकल में, बस इतना सा फर्क होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि एम्बेसी का प्रोसीजर क्या है। अच्छा, एम्बेसी का जो बेसिक प्रोसीजर है ना कि मेन इशू जो ब्लॉक अमाउंट भी मैंने बताया कि आपका इशू नहीं है। इशू जो मेन है ना वो है कि जर्मन एम्बेसी का थोड़ा सा मसला आता है कि इसमें जो इस्लामाबाद वाली एम्बेसी है ना उसके ऊपर रश काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि गिलगित वाली साइड से केपी पूरा पंजाब पूरा, उसके अलावा बाकी भी काफ़ी इधर के जो स्टूडेंट्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा जर्मनी को प्रेफर करते हैं। तो इस वजह से जर्मनी की एम्बेसी के ऊपर रश काफ़ी ज़्यादा है। जो कराची की एम्बेसी है उसके ऊपर रश नहीं है। लेकिन उसके लिए आपके पास कराची का डोमिसाइल या कराची का वो होना चाहिए, एनओसी या आपका क्या नाम है, आईडी कार्ड कराची का होना चाहिए, तब आप कराची की एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं। अब इस्लामाबाद में हमारे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उसका सीन ये होता है कि आपके पास तकरीबन मेरे हिसाब से अभी ये फेसबुक ग्रुप से आपको कंफर्म हो जाएगा कि कितना अभी डिले प्रोसीजर चल रहा है। कुछ स्टूडेंट्स से मैंने पूछा था वो बता रहे थे कि 6 to 8 मंथ का डिले प्रोसीजर है, कि आप जब आपने जब जिस दिन सोच लिया ना कि आपने जर्मनी का अप्लाई करना है तो आप वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर दो। अपनी यूनिवर्सिटी की वो है डेडलाइन देख लो कि 15 मार्च डेडलाइन है। मेरे पास यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर किस दिन किन डेट्स के अंदर आएगा, ताकि उससे पहले पहले मेरे पास वीज़ा की अपॉइंटमेंट हो। इसमें आप जब ये इसको भी मैं दिखा देता हूँ कि आपने अपॉइंटमेंट कैसे करनी है। कि आप यहाँ पे जाते हो, मैंने लिंक उसके साथ अटैच किया हुआ है। आप यहाँ पे इस्लामाबाद एम्बेसी की अपॉइंटमेंट पे जाते हो, यहाँ पे क्लिक करते हो और उसके बाद अपना बुकिंग अपॉइंटमेंट फॉर शॉर्ट बायोमेट्रिक्स रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्टडी वीज़ा, यहाँ पे जाते हो और स्टडी एप्लीकेशन के लिए न्यू अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर देते हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पासपोर्ट अपना रिक्वायर्ड होता है, और एक पासपोर्ट के ऊपर एक ही रिक्वायर्ड होती है। और अप्रॉक्सीमेटली ये आप जो होगे ना यहाँ पे जब फेसबुक ग्रुप में आओगे तो आपको यहाँ पे आइडिया होगा स्टूडेंट्स का कि स्टूडेंट्स ने कब अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया था और उसको किस डेट को मिली थी इस्लामाबाद एम्बेसी में। तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि आपके पास कितने टाइम पहले आपने वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर देना यहाँ पे। ठीक हो गया। और अपॉइंटमेंट जो है वो मिनिमम अपॉइंटमेंट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, एडमिशन लेटर तो लाजमी चाहिए होता है। उसके अलावा आपको जो आपने फिनटेबा में ब्लॉक अमाउंट करवाई है वो आपको रिक्वायर्ड होती है। थर्ड आपको रिक्वायर्ड होते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी के होते हैं, जैसे डिग्री हो गई, ट्रांसक्रिप्ट हो गई, उसके अलावा मैट्रिक एफएससी वगैरह हो गई, वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हो गए, और ये मोटिवेशन लेटर हो गया, सीवी हो गई, और उनका एक फॉर्म होता है। ये 5-6 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये भी मैं आप अजीम के साथ शेयर कर दूंगा वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी। वो इतना इशू नहीं होता, वो पूरे बाकी तो पूरे हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ मेन इशू आता है ब्लॉक अमाउंट पे। ब्लॉक अमाउंट आपने फिनटेबा का जो भी होता है
और दूसरा आपका होता है एडमिशन लेटर। इन 2 चीज़ों को आपने मेन फोकस रखना है। और लैंग्वेज रिक्वायरमेंट अगर यूनिवर्सिटी की है तब आपने साथ आइल्स भी शो करना है या टॉफल जो भी आप कर रहे हो। तो अगर नहीं है तो फिर आपको रिक्वायर नहीं होता वैसे। इसमें ये देख लेते हैं हमें कौन सी यूनिवर्सिटीज़ का कितना कितना रिक्वायर्ड है। अभी ये चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसी का चेक कर लेते हैं कि लैंग्वेज रिक्वायरमेंट इसकी क्या है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट इसकी 6 आइल्स में मेरे हिसाब से ना 6.5 मिनिमम आपका रिक्वायर होता ही होता है मोस्टली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि इन्होंने कैप लगाया होता है कि 6 आइल्स वाला या 6.5 आइल्स वाला, उससे नीचे वाले स्टूडेंट्स को तो लेते ही नहीं है, सीधी सी बात है। जिसका वो होता है 6 या 6.5 से होता है अबव होता है, उसके बाद उसको मोस्टली को ले लेते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ का अब इन्होंने ये भी किया हुआ है कि टेस्ट भी होता है, मतलब ऑनलाइन टेस्ट हो जाता है, जिस तरह FAU का लास्ट टाइम हुआ था, ICT का तो हुआ था, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कर रहा हूँ। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, बाकी जो उन उस पे भी कोर्सेज पे डिपेंड करते हैं कि कुछ कोर्सेज में स्टूडेंट्स कम होते हैं तो उसमें टेस्ट नहीं होता, और जिस कोर्स में स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं तो वो कैप करने के लिए कि कम से कम स्टूडेंट्स आएँ और अच्छी क्वालिटी के स्टूडेंट्स आएँ, तो वो उसके लिए कैपिंग कर देते हैं कि आपको ऑनलाइन टेस्ट भी एक कर देते हैं जिसको आपने पास करना होता है। कभी कभार कुछ यूनिवर्सिटी पे ये हर स्पेसिफिक का नहीं है, वो यहाँ पे आपको इस पे नज़र आ जाएगा जो आपकी रिक्वायरमेंट्स वाली कैटेगरी है। तो जो आइल्स का भी मैंने डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स का डिस्कशन। उसमें हमारे पास आइल्स और आइल्स कैसे करनी है और इसमें है क्या क्या सीन। आइल्स में 4 ही मेन है, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया। अच्छा, स्पीकिंग में तो इतना इशू नहीं है, मोस्टली स्टूडेंट्स बोल ही लेते हैं, कुछ ना कुछ बोल लेते हैं। लिसनिंग में भी इतना इशू नहीं होता मोस्टली स्टूडेंट्स को। जो मेन इशू आता है, एक तो आता है राइटिंग में। राइटिंग हमारी जो है वो कॉमा का हमें नहीं पता कि कहाँ पे लगाना है। दूसरा काफ़ी ज़्यादा हम गलतियाँ करते हैं, इसको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। और मेरे हिसाब से जो मेन देखने की ज़रूरत है ना वो हमारा है रीडिंग को, कि रीडिंग हमारी जो है ना वो इतनी ख़ास नहीं है। रीडिंग और लिसनिंग में आप जो है 8 अबव ले सकते हो बिल्कुल आराम से। उसमें आपके मतलब सॉलिड मार्क्स होते हैं जो आप लूज़ अपनी गलती की वजह से करोगे अगर करोगे। रीडिंग को जितना प्रैक्टिस हो सके उतना ज़्यादा करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें टाइम मैनेज मुश्किल होता है। लिसनिंग में तो जो MCQs आते हैं वो सुनने हैं और आपने सिर्फ और सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं या मैच द कॉलम्स है तो आप सुन के लिख लेते हो। लेकिन जो आपका रीडिंग का वो होता है वो पैराग्राफ्स होते हैं, वो 1 पेज पैराग्राफ या 2 पेज पैराग्राफ होते हैं। वो आपसे कंप्लीट स्टडी नहीं होता, क्योंकि हमारी इतनी ज़्यादा कुछ स्टूडेंट्स की तो होती है कि हॉबीज़ होती हैं कि स्टडिंग करते हैं या बुक रीडिंग करते हैं या कुछ करते हैं, तो उनके लिए तो बेस्ट हो जाता है। हाँ, सीन जिनका सीन ये है कि सिर्फ और सिर्फ वो करते हैं मेरी तरह के, बस लिसनिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वीडियोस देख के लेक्चर्स ले लिए या किसी तरह कर लिया, तो वो उनके लिए मोस्टली होता है कि वो रीडिंग में इतना सॉलिड मार्क्स नहीं ले सकते, लेकिन प्रैक्टिस अगर करें तो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं आराम से। तो 8 अबव अगर आपका आइल्स में रीडिंग में आ जाता है और लिसनिंग में आ जाता है तो आपको 6 या 6.5 या 7 भी आपका इवन आ जाता है आराम से। फिर उसमें राइटिंग और दूसरा स्पीकिंग में तो इतना उसमें इशू नहीं होता। और प्रिपरेशन का जहाँ तक सवाल है, वो आप ऑनलाइन यूट्यूब पे भी लेक्चर्स बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। आप पेपर्स प्रिंट कर सकते हैं। आप आइल्स की प्रिपरेशन के लिए कोर्सेज खोलो, कोई भी खोल लो, उसके अंदर आपको ना डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं कि रीडिंग का ये वो है, ऐसे राइटिंग के ये टॉपिक्स हैं, उसके स्पीकिंग के लिए ये टॉपिक्स हैं। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं यूट्यूब के ऊपर। थाउजेंड ऑफ वीडियोस हैं जिसके अंदर वो इंटरव्यूज ले रहे हैं। इंटरव्यूज के पता लग जाता है आपको कि किस तरह वो इंटरव्यूज लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, कितने टाइम तक वो होता है, तो सारा कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट जो है किसी एकेडमी को ज्वाइन करना चाहता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ज्वाइन कर सकता है, कोई इतना मसला नहीं होता। तो क्योंकि वो भी स्पेसिफिक प्रिपरेशन करवाते हैं, इसमें आपने थोड़ा खुद वो करना है, डिगम करके, तो आपने इसको खुद ढूंढना है थोड़ा सा। तो इसमें इतना इशू नहीं होता मेरे हिसाब से। आइल्स 6.5 तो मिनिमम हर स्टूडेंट ले ही सकता है हमसे। उसके अलावा जो जर्मन रिक्वायरमेंट है ना, वो स्टडीज़ के लिए तो जर्मन रिक्वायरमेंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर आपका गोल ये है कि आपने यहाँ पे आगे
पासपोर्ट लेना है या आपने ये करना है यहाँ पे कंटिन्यू करनी है लाइफ, तो उसके लिए फिर जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर्ड है और डेली लाइफ में आपको जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर्ड है। जैसे कि आपने ग्रोसरीज करने जाना है या आपने बाहर किसी से मिलना है, तो प्रेफरेंस उसी को जॉब्स के लिए भी मोस्टली जो प्रेफरेंस मिलती है वो जर्मन और इंग्लिश जो कॉम्बिनेशन है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी कि जिसको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आती है। और जॉब्स की भी मैं बात कर रहा हूँ और टेक्निकल की भी बात कर रहा हूँ। टेक्निकल में टेक्निकल स्किल्स तो देखी जाएंगी, लेकिन एड ऑन वो जर्मन लैंग्वेज को भी देखते हैं मोस्टली। और जर्मन लैंग्वेज अगर आपके पास अभी टाइम है तो नमल करवाती है जर्मन लैंग्वेज, नमल कोर्सेज करवा रही है। उसके अलावा आप और भी ढूंढ सकते हो कि ऑनलाइन जर्मन मतलब A1 या A2 तक तो आप कम से कम पहुंच जाओ जब आप यहाँ पे आ रहे हो, तो थोड़ा सा बंदे को आइडिया भी होता है कि मैं किस उसमें जा रहा हूँ, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्या है और किस तरह मैंने बात करनी है। थोड़ा सा हेलो हाउ हाय हेलो हो जाती है किसी न किसी के साथ। और क्योंकि जब आप PR के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं ना अपनी स्टडीज़ कंप्लीट के बाद, तो आपको B1 तो रिक्वायर्ड होता है, आपने अगर ब्लू कार्ड के ऊपर PR जल्दी लेनी है। नहीं तो आपको B2 B1 के ऊपर आपको थोड़ा टाइम डिले में चल रहे होते हो, ताकि साल या 1.5 साल का शायद गैप होता है। अगर आपके पास B1 हो तो तब PR साल पहले मिल जाती है, और अगर आपके पास B1 नहीं है तो आपको साल बाद मिलती है। मतलब इतना सा डिफरेंस होता है बेसिकली। और इसी तरह जब पासपोर्ट मिलता है तो उसमें भी इतना सा डिफरेंस होता है। तो लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर कर लो तो बेनिफिशियल है, ये मेरा सजेशन है इसके लिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि पार्ट टाइम जॉब्स यहाँ पे कैसे ढूंढनी है और होती कैसे हैं। अच्छा, पार्ट टाइम जॉब्स आप ढूंढ सकते हो। टेक्निकल की मैं बात करूँ, नॉन टेक्निकल तो आपको कहीं पे भी आप फेसबुक पे चला रहे होगे तो आपको उसके ऊपर ऐड आ जाएगा नॉन टेक्निकल का, और इतना इशू नहीं होता वो ढूंढने में। तो ये 3 मैंने प्लेटफॉर्म देखे थे जिसके ऊपर मैंने भी अप्लाई किया हुआ था। लिंक्डइन है, स्टेपस्टोन्स है, स्टैक ओवरफ्लो है। इन तीनों के ऊपर आपको टेक्निकल जॉब्स मोस्टली मिल जाती हैं। और लिंक्डइन बेसिकली कहते हैं कि इसमें आपकी प्रॉपर होनी चाहिए प्रोफाइल, ताकि आप कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हो तो आपको प्रोफाइल उसको सिर्फ और सिर्फ आपको वो भेजने की ज़रूरत नहीं होती, वो आपकी प्रोफाइल मोस्टली देख लेते हैं और उसके बाद आपको कांटेक्ट कर लेते हैं। तो इसके थ्रू आप लिंक्डइन के थ्रू भी, स्टेपस्टोन्स के थ्रू भी, स्टैक ओवरफ्लो के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। टेक्निकल जॉब्स का मैं बता देता हूँ कि आपको कोई भी बल्कि जॉब्स जो हैं वो 20 आवर्स पर मंथ अलाउड होती हैं। इससे ज़्यादा आप करोगे तो आपको इनकी गवर्नमेंट की तरफ से लेटर आ जाएगा और उसके ऊपर फिर आपको अलाउड नहीं होगा, एक्स्ट्रा काम करना अलाउड नहीं है। तो 120 डेज आप फुल टाइम कर सकते हो। मतलब अगर आप बीच में काम नहीं करना चाहते, आप कहते हो कि मैंने स्टडीज़ को सेमेस्टर के दौरान काम नहीं करना, तो जो आपको सेमेस्टर ब्रेक होती है, आप कहते हो कि उस मंथ में मैं 2 मंथ मुझे सेमेस्टर ब्रेक होती है तो मैं उसके अंदर फुल टाइम काम करना चाहता हूँ, तो वो आपको अलाउड होता है कि आप 120 डेज फुल टाइम कर सकते हो या 240 डेज आप पार्ट टाइम कर सकते हो। तो वो 240 डेज आपके कैलकुलेट कर लो जितने भी बनते हैं। इसमें 12 या 12.5 अभी मिनिमम वेज रेट चल रहा है। मिनिमम वेज रेट मतलब कि पर आवर आपको इतना मिलता है, तो इसको आप 12 इंटू 20 इंटू 4 कर लो। 20 आवर्स पर वीक थे तो 4 वीक्स पर मंथ हो गए, तो ये आपके तकरीबन 800 टू 850, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं इतने बनते हैं। तो ये इतने आ जाते, इस तरफ से जॉब से आप कमा सकते हो और इतने ही आपको फिनटिबा से आ रहे होते हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि फाइनेंसिस का इस टाइम पे इशू नहीं होता, क्योंकि आपने अगर किसी से लेके भी आए थे ना पैसे अपने ख़ानदान में किसी से, तो आप फर्स्ट ईयर या मैक्सिमम 2 ईयर्स के अंदर अंदर आप रिटर्न कर लेते हो आराम से, क्योंकि जो फिनटिबा वाले आ रहे होते हैं वो आप रिटर्न कर सकते हो आराम से। और दूसरा एक बात मैंने और क्लियर करनी थी कि जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखना है, कुछ यूनिवर्सिटीज तो आपने बताया कि 9 to 10 में तो आपने करना है, तो आपने कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी अप्लाई करनी है कि जिसमें आपको ना सिटी की वाइब थोड़ी बेहतर है। सिटी की वाइब मतलब कि सिटी में जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, सिटी की लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं वो थोड़े कम होने चाहिए। क्योंकि अगर आप म्यूनिख में जाते हो तो आपको 400 या 500 में अगर आपको अपार्टमेंट या रूम मिलता है 400-500 यूरो में, तो फिर आपका जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़ाहिर सी बात है सारे के सारे उधर लग जाएंगे। तो आपके ये 3-4 चीज़ें आपने मैनेज करनी है कि आपने सिटी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, सिटी कितना बड़ा है या कितना छोटा है वो देखना है। तीसरी चीज़ आपने देखनी है कि सिटी के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा तो नहीं है
और सिटी में जो है ना एक तो इधर लिविंग का जो है ना वो काफ़ी इशू है कि इतने आराम से रूम्स अवेलेबल नहीं हैं। तो जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं उनको काफ़ी दफ़ा मुश्किलात होती हैं कि वो स्टूडेंट्स जो होते हैं रूम्स देख रहे होते हैं कि रूम्स नहीं मिल रहे होते और फिर पाकिस्तान में ही बैठ के ऑनलाइन स्टार्ट कर लेते हैं, फिर जब रूम मिलता है तो फिर वहाँ पे शिफ्ट मारते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें आपने लाजमी अपने ज़हन में रखनी है जब आप अप्लाई करें। अच्छा, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हमने डिस्कस कर लिया था। लेटर ऑफ मोटिवेशन, ये भी इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है इसमें। मैं इसमें ज़्यादा अच्छा गाइड नहीं कर सकता क्योंकि मैंने तो खुद बस जुगाड़ जुगूड़ लगा के ये कर लिए थे। तो इसमें कोई आपको जो लेटर ऑफ मोटिवेशन का ज़्यादा थोड़ा सा बंदा जो थोड़ा प्रॉपर्ली गाइड कर सकता है वो उसके साथ कोई सेमिनार हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेटर ऑफ मोटिवेशन में मेन चीज़ें मैं पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूँ कि इसमें आपने क्या क्या चीज़ें मेनली ऐड करनी होती हैं। अपना प्रीवियस बैकग्राउंड वगैरह लिखने होते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या था, आप आगे क्या करना चाहते हो। उसके अलावा आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हो, आपने कौन कौन सी जॉब्स वगैरह की हुई हैं और आप क्यों इस कोर्स के लिए मोटिवेटेड हो। ये मोटिवेशन जो है वो आपने शो करनी है कि मैंने पहले ये काम किया था और मैं इसी चीज़ को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अगर तो स्टूडेंट होते हैं कुछ ना कहते हैं कि मैंने अब इंजीनियरिंग कर ली है, अब मैं इंजीनियरिंग में नहीं जाना चाहता, मैं ना कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मैनेजमेंट वाली साइड पे चला जाऊँ। जैसे मेरा भी ये स्टार्ट में माइंड था कि मैं कोशिश करके ना उधर चला जाऊँ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट वाली साइड पे या इस तरह के किसी फील्ड में चला जाऊँ। लेकिन उसके लिए आपके प्री रिक्विजिट्स मैच नहीं कर रहे होते। प्री रिक्विजिट्स मैच ना करें तो वो यूनिवर्सिटी एडमिशन ही नहीं देती। इससे बेहतर है कि आपको पहले ही पता है कि आपको रिजेक्शन आनी है, तो उससे पहले ही आप उस फील्ड जगह पे अप्लाई ना करो जहाँ पे आपको पता है कि रिजेक्शन आनी है। क्योंकि प्री यूनिवर्सिटी आपके कैपिंग होती है, यूनिवर्सिटी देखती है कि आपके ये कोर्सेज कंप्लीट हैं, ये कोर्सेज कंप्लीट हैं, तो वो पाइपलाइन फॉलो करती है क्योंकि सिस्टम ने ही एक्सेप्ट करना है, सिस्टम ने ही रिजेक्ट कर देना है। तो सिस्टम एक्सेप्ट ही उसको करेगा जिसके कोर्सेज मैच कर रहे हैं। कोई पर्सन तो बैठा नहीं है कि जो इंटरव्यू लेके आपको पूछेगा कि आपका इंटरेस्ट उसमें था कि नहीं है। वो इस चीज़ को माइंड में रख के फिर उसके बाद इस चीज़ को यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है कि लेटर ऑफ मोटिवेशन जो है ना वो प्रॉपर्ली आपका फॉलो कर रहा हो कि आपका पहला बैकग्राउंड क्या था और आगे आपका मोटिवेशन क्या है। फिर रिकमेंडेशन लेटर्स होते हैं। रिकमेंडेशन लेटर्स आप किसी भी प्रोफेसर से यूईटी में पढ़ रहे हैं तो जिस प्रोफेसर से जिस यूनिवर्सिटी के टीचर से आपने पढ़ा है तो उनसे आप बनवा सकते हैं। जैसे कि मैंने सर गुलिस्तान राजा से बनवाया था, सेकेंडली सर जुनैद मीर से बनवाया था, थर्ड मैंने बनवाया था सर उबैद साहब से बनवाया था। तो इन सब से ही आपने जो जो कोर्सेज पढ़े हुए हैं तो उनसे रिलेटेड आपने प्रोजेक्ट भी लाजमी किए होंगे। तो उन प्रोजेक्ट्स का थोड़ा सा बैकग्राउंड उस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में दे के और उस कोर्स की डिटेल्स दे के और उसमें क्या आपका सीजीपीए था या जो भी आपका था उसके हिसाब से आपको वो टेम्पलेट लिख के तो सर के पास जाके तो सर से सिग्नेचर करवाने हैं बस, और उसकी सॉफ्ट कॉपी आपने भेज देनी है। और फोर्थ पे डिस्कस कर लेते हैं सेटलिंग टाइम। अच्छा, सेटलिंग टाइम इधर तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली अगर आपको सिटी भी सारा वाइब वगैरह ठीक है तो 3 to 4 मंथ्स मैक्सिमम होते हैं। मैंने आपको बताया कि 4 to 5 आपके मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने यहाँ पे आकर कंप्लीट करने होते हैं, जिसमें आपका एनरोलमेंट लेटर आता है यूनिवर्सिटी का, उसके अलावा बैंक सेम्स, उसके अलावा आपका टैक्सेस का डॉक्यूमेंट, टैक्स का जो डॉक्यूमेंट होता है, थर्ड आपका होता है कि सिटी रजिस्ट्रेशन होती है और वीज़ा एक्सटेंशन होती है। ये 5-6 काम आपने करने होते हैं और ये जब भी पूरे हो जाते हैं आप सेटल हो जाते हैं उसके बाद आपको मतलब डेली रूटीन आपकी जो होती है वो प्रॉपर सेट हो जाती है। उससे पहले तो आपका कभी किसी ऑफिस में चक्कर लगता है, कभी किसी ऑफिस में। और दूसरी एक और चीज़ मैंने इसमें ऐड करना भूल गया। एक चीज़ जो है ना वो आपने लाजमी देखनी है कि ये ना सिटी के अंदर ना आपको वीज़ा एक्सटेंशन भी जो है वो 2 साल का मिलता है या 1 साल का मिलता है, डिपेंड ऑन सिटीज़। ये किसी कहीं पे नहीं लिखा कि आपको 1 साल का ही मिलेगा या 2 साल का मिलेगा। अब कुछ सिटीज़ के जो राट हाउसेस जिसको हम सिटी सेंटर्स कहते हैं, जहाँ पे आपने जाके अपनी सिटी रजिस्ट्रेशंस करवानी होती हैं, वहाँ पे आपको 2 साल का मिलता है, कुछ सिटीज़ में 1 ईयर का मिलता है। तो ये भी आपने थोड़ा-सा मैनेज कर लेना है कि अगर आपको किसी ऐसी सिटी में प्रायोरिटी मिल रही है जहाँ पे 2 साल का मिलता है, जैसे एर्लांगन में या न्यूरमबर्ग में 2 साल का, न्यूरमबर्ग में शायद 1 साल का मिलता है, एर्लांगन में 2 साल का मिलता है और बर्लिन में 1 साल का मिलता है। तो आपके पास बर्लिन की और एर्लांगन की ऑप्शन आ गई है, तो आप कौन से सेलेक्ट करोगे? उसके फिर आपने इसको सेलेक्ट करना है कि आपके पास बर्लिन में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादा है। बर्लिन क्योंकि कैपिटल है। एर्लांगन में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज सीमेंस यहाँ पे है, क्राउन ऑफर यहाँ पे है, उसके अलावा एडिडास का हेडक्वार्टर यहाँ पे है।
4-5 मेन यहाँ पे भी हैं। ये चीज़ आप बैलेंस आउट करोगे, फिर उसके बाद देखोगे बर्लिन में 1 ईयर का वीज़ा मिल रहा है, लंदन में 2 साल का वीज़ा मिल रहा है। उसके अलावा आपने देखना है कि सिटी तो वो वाला बड़ा है, एक्सपेंसेस लाजमी सी बात है, बर्लिन में फिर ज़्यादा होंगे, लंदन में थोड़े से कम होंगे। तो ये चीज़ आप जब कंपेयर करोगे तो उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि सिटी में किस सिटी में जाना है। ये भी हो गया। उसके बाद अब लास्ट में किसी के भी कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे बता दें, उसको डिस्कस कर लेते हैं। Sorry for the interruption, sir. I have an important announcement to make. The feedback form has been uploaded in the chat box. You all are requested to fill it for your e-certificates. You may continue, sir. Can you repeat? I didn't understand you. Iman I was saying that the feedback form has been uploaded in the WhatsApp group. You guys can go there for the e-certificates. And secondly, I think if you have completed your presentation, then we can go for question answer session. Yeah, I have completed. Iman, we have a few questions. You can ask them. Thank you so much, sir, for your time. Now it's time to answer the question of the audience. It seems like we have a few questions. We'll go for the first one from Shazma Suhail. Yes, Shazma, ask please. Shazma, am I audible? Okay, we'll go to the second one from Tahreem Ali. Tahreem, you may ask the question. Iman, you are audible. Can I ask Assalamualaikum. right now? Shazma, you may answer after Tahreem, please. Assalamualaikum. Am I audible? Yes, you are. Acha. Sir, I have a question. Sir, UniAssist is better or applying directly is better? And in which one chances of acceptance are more? एक्सेप्टेंस जो है ना वो यूनिवर्सिटी की बेसिस पे ही होती है। यूनिअसिस्ट में ये होता है कि यूनिअसिस्ट जो है वो आपकी एप्लीकेशन को पहले मॉनिटर करता है, उसके बाद उसको चेक करता है और उसके बाद यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करता है। यूनिअसिस्ट एज अ सेंट्रल पार्टी बना होता है, और जो आपकी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को आप एप्लीकेशन भेजते हो वो यूनिवर्सिटी उसको प्रॉपर्ली मैनेज करती है और उसी को गो थ्रू करती है और उसके बाद आपको रिप्लाई करती है। तो यूनिअसिस्ट का भी उस पर तो आपको प्रॉपर्ली वो हो जाता है ना कि स्टेप वाइज आपने ये काम करने हैं, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे हैं। उसमें आपको प्रॉपर्ली एक वे फॉरवर्ड मिल जाता है कि टेल मिल जाती है आपको ना प्रॉपर्ली, जिसमें आपने अप्लाई करना होता है। और जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होती है उसमें भी ऐसा ही सीन होता है कि आपको गाइड करने के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप जाते हो और वहाँ पे अप्लाई करते हो। तो दोनों के प्रोज ही हैं, कॉन्स किसी का भी मेरे हिसाब से नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आप यूनिअसिस्ट पे अप्लाई कर लो और कुछ आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई कर लो। यूनिअसिस्ट मेरे हिसाब से कम ही यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अब यूनिअसिस्ट को फॉलो करती हैं, मोस्टली अपना ही फॉलो करती हैं अपने ही प्लेटफॉर्म से। Okay, sir. Thank you. Yes, Shazma, you may ask now. Sir, so my question is, should we also focus on curriculum or admission? Or admissions are granted only on the basis of academia? Can you repeat the question, please? Yes, sure. Should we also focus on concepts and curriculum, or admissions are granted only on the basis of academia? Like we have to focus on concepts and curriculum, or we have to focus on academia essentially to get admissions? Essentially, most of the time you have to focus on in curriculum academia. So basically उनको आपका कोई भी इंटरव्यू रिक्वायर्ड नहीं होता, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवाते हो उन्हीं के थ्रू वो आपको एडमिशन देते हैं या एडमिशन नहीं देते। सो अगर एडमिशन जो है, जो हम सुनते थे ना कि जीपीए इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट और ये जो सारा गन सुनते थे, ये कुछ भी नहीं है। जीपीए इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर 3.7 3.8 जीपीए है तो कोई भी यूनिवर्सिटी हंस के ले लेगी,
और अगर 3.3 GP है तो फिर आपको थोड़ा सा ऐड ऑन करना पड़ेगा, कोई मतलब कि लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स, कोई आपने कोर्सेरा से कोई कोर्स किया हुआ है या यूडेमी से कोई कोर्स किया हुआ है, तो ऐड ऑन जो होते हैं वो आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट शो करते हैं। मेरा भी FAU में एडमिशन, मेरे जितने 7 स्टूडेंट्स हैं उनका मेरे से ज़्यादा ही GP है। मेरा एक जो बेनिफिट था वो ये था कि मेरे पास रिसर्च पेपर उस टाइम पे मेरा अभी हुआ था, तो मैं उसी के बेसिस पे मुझे एडमिशन बेसिकली मिल गया था। तो आपको जाहिर सी बात है कि एकेडेमिया मैटर करता है, कॉन्सेप्ट किसी ने अभी नहीं देखने, जो आपने कॉन्सेप्ट थे वो आपने पेपर्स में दे दिए, आप यहाँ पे जब पेपर्स दोगे तो वो कॉन्सेप्ट्स आप यहाँ पे शो करोगे, लेकिन जब एडमिशन मिल रहा होता है तो कोई कॉन्सेप्ट्स वगैरह नहीं देखता। Okay, sir. Thank you so much. Moving towards another question from Talha Numan. Yes, Talha. सर ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो कहती हैं कि हमारा ना डुअल लैंग्वेज का कोर्स है। अब उनका करिकुलम में शुरू में इंग्लिश के कोर्सेज आते हैं एंड देन एंड पे जाके कुछ कॉम्प्लेक्स कोर्सेज होते हैं वो जर्मन में होते हैं। तो क्या आपको शुरू में ही बताना पड़ेगा कि भाई मुझे जर्मन आती है, या कैन यू प्रोवाइड योर जर्मन सर्टिफिकेशंस एट द एंड जब आपने कोर्स उठाना हो वो जर्मन लैंग्वेज वाला? यार इसमें ये दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि आपके मैंडेटरी कोर्सेज जो हैं वो जर्मन में हैं। अगर तो मैंडेटरी कोर्सेज जर्मन में हैं तो फिर तो आपको स्टार्ट में देने पड़ेंगे। मैंडेटरी कोर्सेज मोस्टली 4 to 5 होते हैं जो आपने करने ही करने होते हैं उस कोर्स के। उसके अलावा आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हो कि आपने ये कोर्स करना है, ये कोर्स करना है। जो उनसे भी कोर्सेज बाद में करने होते हैं उसका इतना इशू नहीं होता, क्योंकि आपके पास कोर्स करिकुलम जो आता है ना उसके ऊपर होते हैं तकरीबन 40 to 45 सब्जेक्ट्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं। उसमें 4 to 5 आपके कोर्स के रिलेटेड होते हैं जो आपने मैंडेटरी करने ही करने हैं। वो आपने इंग्लिश में हो तो बेहतरीन ऑप्शन है और उसमें आप अप्लाई कर लो। और जो दूसरे होते हैं ना, जो 40 to 50 होते हैं, जो एक्स्ट्रा कोर्सेज होते हैं जिसमें से आपने सिलेक्शन करनी होती है, उसके आगे मोस्टली के आगे स्टार लगा होता है कि ये इंग्लिश में कोर्सेज हैं, ये जर्मन में कोर्सेज हैं। तो आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि आप शिफ्ट कर सकते हो कि चलो जर्मन वाला तो मैं नहीं कर रहा, मैं इंग्लिश वाला कर लेता हूँ। कोई भी कोर्स है, जैसे पैटर्न एनालिसिस है, पैटर्न रिकग्निशन है, डीप लर्निंग है, इस तरह के काफ़ी कोर्सेज हो जाते हैं। जो आपके मैंडेटरी कोर्सेज हैं उनको कोशिश करो कि जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फुल ऑप्शन इंग्लिश में मिले ना, तो वो सेलेक्ट कर लो, क्योंकि जर्मन इधर आके 2 या 3 साल में नहीं बंदा सीख सकता स्टडीज़ के साथ साथ। एंड पे भी जाके आप ज़्यादा से ज़्यादा करते हो कि B1 आपका A1 या A2 आपका क्लियर होता है, या B1 भी क्लियर जिनका होता है ना, वो जर्मन में स्टडीज़ इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर आपने जर्मन में कोर्सेज करने हैं ना, तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये होती है कि आप 1 ईयर फुल प्रोग्राम जर्मन लैंग्वेज को सीख लो पहले, फिर उसके बाद आप जर्मन लैंग्वेज की जो भी कोर्सेज हैं ना उनको सेलेक्ट कर लो। ओके ठीक है, थैंक यू। Okay, moving towards a question from Moaz Ali. Moaz, are you there? Yes, I hope I am audible. आवाज आ रही है सबको? Yes, you are audible. Okay. My question is कि हम अगर आप जैसा कि बात कर रहे थे that the whole procedure of visa is really complicated, एक delay process आ रहा है, तो अगर हम realistically बात करें तो अगर एक student 7 semester की completion के बाद क्या उसको apply करना चाहिए for the winter or fall semester, you know, या फिर उसको wait करना चाहिए for the next year के जब दोबारा से admission start होते हैं जर्मनी में, वो तब अपनी complete degree की base पे apply करे, या फिर ट्रांसक्रिप्ट की बेस पे भी अप्लाई किया जा सकता है फॉर द 7 सेमेस्टर? किया जा सकता है, ट्रांसक्रिप्ट के बेस पे भी अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पे आपको ना, ये डार्ट की वेबसाइट पे जाओगे वहाँ पे मेंशन भी है, लेकिन वहाँ पे ECTS पे आपको होते हैं कि ECTS जो है ना वो आपने कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि प्री रिक्विजिट्स का सारा गेम होता है कि आपको एडमिशन ही प्री रिक्विजिट्स की बेस पे मिलता है कि आपके इतनी ECTS कंप्लीट हैं, ये कोर्स आपने किया हुआ है तो आपको उस कोर्स में एडमिशन मिलेगा। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि हाँ कि वीज़ा जो प्रोसीजर है वो कॉम्प्लिकेटेड है। वो अभी कॉम्प्लिकेटेड हुआ है। पिछले 1 साल जब मैं आ रहा था ना, मुझे विद इन अ वीक मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई थी।
उस टाइम स्पैन में ना तकरीबन 1 ईयर का टाइम स्पैन था, तब उन्होंने वीज़ा प्रोसेस को चेंज किया था उन दिनों में, कि जिसके पास एनरोलमेंट लेटर होता था ना यूनिवर्सिटी का या एडमिशन लेटर होता था, वही अप्लाई कर सकता था। अभी स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे कि जिनके पास एडमिशन लेटर भी नहीं था और एनरोलमेंट लेटर भी नहीं था, वो भी अप्लाई कर देते हैं, वो मतलब साल से पहले अप्लाई कर देते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो एप्लीकेशंस होती हैं, जो वीज़ा वो प्रोसेसिंग होती है, वो ज़ाया होते हैं, कि जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो ज़ाया होती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास एडमिशन लेटर होता नहीं है और वो अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इनको प्रोसीजर तो काफ़ी दफ़ा कहा है कि दोबारा चेंज कर दें, जो पुराना प्रोसीजर था, लेकिन अभी तक जर्मन एम्बेसी ने दोबारा नहीं चेंज किया। इसमें ये आपके पास होता है कि आप एडमिशन अप्लाई कर दो, और मतलब अपॉइंटमेंट आपके पास ना एडमिशन, सबसे पहले एडमिशन लेटर होना चाहिए और अपॉइंटमेंट आपकी पैरेलल में आए, ये आपका बेसिक गोल होना चाहिए कि दोनों चीज़ें साथ आ जाएं। अब साथ नहीं आती ना, तो आपके पास अपॉइंटमेंट बाद में थोड़ी डिले में आए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके पास वो पहले आना चाहिए एडमिशन लेटर। अब एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी का अगर समझेंगे, ये आया कि आपके विंटर में आया और आपका समर्स का थोड़ा सा बाद में जाके आपके पास अपॉइंटमेंट आ रही है जर्मन एम्बेसी की, तो आप ये करते हो कि यूनिवर्सिटी को मेल लिखते हो कि मेरा ना डेफर कर दें नेक्स्ट सेमेस्टर में, कि मैं इस सेमेस्टर आपको ज्वाइन नहीं करूंगा, मेरा डेफर कर दें नेक्स्ट सेमेस्टर में। यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली डेफर कर देती हैं कि आपका विंटर सेमेस्टर से समर सेमेस्टर में आपको डेफर कर देती हैं, तो आपके पास ज्वाइनिंग आपकी समर सेमेस्टर में होती है और बीच में आपके पास टाइम भी होता है, आप जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहो जर्मन लैंग्वेज सीख लो, और साथ आप अपॉइंटमेंट के प्रोसेस जो है वो उसको कंटिन्यू रखो। Any other question? Due to time shortage, we are unable to answer everyone else's queries as we have a schedule to follow. Thank you so much, sir, for your time. Now it's time. Sir, is there anything you want to say before a wrap up? No, I'm good to go. Thank you so much. Jazakallah, sir, for making this event with your presence and giving us your valuable time. Thank you so much for having me. I would like to thank the entire team and audience and our collaborators side. Thank you all for attending this event. Stay blessed and positive. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir.